لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ۔ معزز خواتین و حضرات، آداب و سلام۔ میں ڈاکٹر ریشما تزئی، مرتبہ ایک نئی بات نکل آئی ہے جس کے مصنف ڈاکٹر محمد اظہر حیات ہے، آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ہے جو 2025 میں الفاظ پبلیکیشن کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔ معزز ناظرین، اس کتاب کا پیش لفظ ناچیز نے تحریر کیا ہے، سماعت فرمائیے تاکہ کتاب کے دیگر مشمولات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے استاد محترم ڈاکٹر محمد اظہر حیات کے ان مقالات و مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے سیمیناروں اور آل انڈیا ریڈیو کے اردو پروگراموں کے لیے تحریر کیے تھے۔ بیشتر مقالے موقر رسائل و جرائد، ہفتہ روزہ اور روزناموں کی زینت بھی بنے۔ تقریباً تمام مضامین میرے مطالعے میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسے ترتیب دے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے تاکہ ایک جگہ محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے بخوشی اجازت برہمت فرمائی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی اور فخر کا احساس ہوتا ہے کہ محترم ڈاکٹر اظہر حیات سر میرے پی ایچ ڈی کے گائیڈ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں جب کبھی مجھے علم و ادب کے میدان میں تشنگی کا احساس ہوتا ہے تو میں سر کے دولت قدے پر حاضر ہوتی ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خود کو مطمئن پاتی ہوں۔ وہ مجھے بیٹی کہتے ہیں اور ان کے برتاؤ میں بھی مجھے والد کی سی شفقت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی اہلیہ، بیٹے، بہویں بھی مجھے گھر کا فرد گردانتے ہیں۔ کچھ مصنف کے بارے میں۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات گزشتہ 50 برسوں سے اردو زبان و ادب کی بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں۔ موصوف 14 اکتوبر 1954 کو ناگپور میں پیدا ہوئے، آپ کے والد محمد سعید حیات صاحب کا شمار وسط ہند کے اولین وکلاء میں ہوتا تھا۔ 6 بھائیوں میں اظہر حیات سر کا شمار 5ویں نمبر پر ہے۔ تمام بھائی تعلیم اور تعلم سے وابستہ رہے ہیں۔ افسوس کے سب سے بڑے بھائی محمد ظفر حیات صاحب 18 ستمبر 2022 کو داغ مفارقت دے گئے۔ حیات سر کی ابتدائی تعلیم کارپوریشن اردو پرائمری اسکول سے ہوئی، جہاں ایک ہندو استاد پنڈت جی سے آپ نے اردو سیکھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہائی اسکول گاندھی باغ ناگپور سے مڈل اور انجمن ہائی اسکول صدر سے 1972 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بعدہ گورنمنٹ مورس کالج سے بی اے 1975، ایم اے عربی 1978 اور ایم اے اردو 1980 میں مکمل کیا۔ کالج کے زمانے میں آپ کے اساتذہ خصوصاً پروفیسر ڈاکٹر سید رفیع الدین صاحب، ڈاکٹر منشاء الرحمان منشا صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالرحیم صاحب آپ کو نہایت عزیز رکھتے تھے۔ نومبر 1980 میں آپ کا تقرر عربین امریکن آئل کمپنی آرامکو الزہران سعودی عربیہ میں بحیثیت کمپیوٹر آپریٹر عمل میں آیا۔ 1986 تک یہاں آپ کا قیام رہا۔ وطن واپسی کے بعد حیات سر شادی کے بندھن میں بن گئے لیکن تعلیم سے بیگانہ نہ ہوئے اور 1988 میں آپ نے بھوپال یونیورسٹی سے بی ایڈ کا کورس مکمل کیا۔ اسی سال 1988 میں مورس کالج میں بحیثیت لیکچرار عربی تقرر عمل میں آیا۔ چونکہ یہ ملازمت عارضی تھی، اسی لیے خوب تر کی تلاش میں آپ نے 1992 میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ فار انڈین لینگویجز میسور کرناٹک میں انڈو جاپانی پروجیکٹ کے تحت بحیثیت ریسرچ فیلو جوائن کیا۔ اسی اثنا میں 1993 میں یشودا گرلز آرٹس اینڈ کامرس کالج ناگپور میں بحیثیت مستقل اسسٹنٹ پروفیسر اردو تقرر ہو گیا۔ دوران ملازمت 1997 میں اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ناگپور یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ کی تحقیق کا موضوع مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں تعلیمی تصورات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ تھا۔ آپ کے نگراں اردو فارسی کے استاد محترم ڈاکٹر عبدالرب عرفان صاحب تھے۔ دوران ملازمت آپ 6 سال تک پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے۔ 2014 میں آپ ریٹائر ہوئے۔ آپ راشٹر تکروجی مہاراج ناگپور یونیورسٹی میں اردو بورڈ آف اسٹڈیز کے 2 مرتبہ 2005 اور 2010 تا 2015 چیئرمین رہے۔ علاوہ ازیں اکیڈمک کونسل کے رکن، یونیورسٹی لائبریری کمیٹی کے ساتھ یونیورسٹی کی کئی اہم کمیٹیوں میں آپ نامزد کیے گئے، جہاں آپ نے پوری سنجیدگی، ذمہ داری اور خلوص سے خدمات انجام دی۔
RTM नागपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के रिसर्च गाइड व सुपरवाइजर होने की हैसियत से आपकी निगरानी में 22 तलबा व तालिबात ने PhD की सनद हासिल की। अलावा अजीज मुल्क की मुतादिद यूनिवर्सिटीज में बतौर मुमतहिन मदऊ किए जाते हैं। डॉक्टर अजहर हयात की 2005 में महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ एजुकेशन पूना के 9वीं 11वीं के अरबी निसाब कमेटी में शुमिलियत रही। नेज महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन में बहैसियत फाल रुकन भी आपने खिदमत अंजाम दी। 2014 में यशोदा गर्ल्स कॉलेज से सुबुकदोशी के बाद 2015 में नागपुर के मारूफ इदारे अंजुमन हामिया इस्लाम के जेर एहतमाम अंजुमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बहैसियत प्रिंसिपल आपने खिदमत अंजाम दी। 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ से आप सुबुकदोश हो गए। आप जहाँ भी और जिस मनसब पर रहे पूरी दयानतदारी और खुलूस के साथ सरगर्म रहे। आप उर्दू जबान व अदब के फरोग व तरवीज के लिए हमेशा फाल रहते हैं। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के कयाम के लिए तकरीबन 11 साल तक जद्दोजहद करते रहे और आखिरकार हुकूमत महाराष्ट्र ने नागपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबे के कयाम को मंजूरी दे दी। आपकी सरपरस्ती में अगस्त 2013 को MA उर्दू की क्लासेस का आगाज हुआ। ये शोबा हुनूस तरक्की की राह पर गामजन है। अजहर हयात सर 1996 तक 2001 के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र राज्य उर्दू एकेडमी का रुकन नामजद किया। बहैसियत रुकन भी आपने कई सेमिनारों और मुशायरों का इनेकाद किया। नागपुर में बच्चों के शोरा का कुल हिंद मुशायरा अपनी नोयत का बिल्कुल मुनफरिद मुशायरा था। उस मुशायरे में बच्चों के लिए लिखने वाले शोरा मौजूद थे। उर्दू किताबों की नुमाइश कुल हिंद 2 रोजा जश्न गालिब का यादगार इनेकाद आपकी क़यादत में अमल में आया, जिसमें मुल्क के नामवर शोरा व अदबा ने शिरकत फरमाई। यशोदा गर्ल्स कॉलेज के जेर एहतमाम 2 फरवरी 2011 को कौमी यकजहती और उर्दू शायरी के उन्वान से और 27 सितंबर 2014 को गैर मुस्लिम शोरा की शेरी खिदमत के उन्वान से नागपुर में सेमिनार मुनक्किद किए गए। दोनों सेमिनार कुल हिंद पैमाने पर मुनक्किद किए गए और उसे UGC का माली ताउन हासिल था। उन दोनों सेमिनारों के कन्वीनर हयात सर ही थे। 2013 को RTM नागपुर यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू की जानिब से शाद आरफी हयात व खिदमत इस मौजू पर सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसके कन्वीनर भी डॉक्टर साहब ही थे। इस सेमिनार के इनेकाद के लिए कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान दिल्ली की माली इनायत हासिल की। साथ ही वस्त हिंद के मारूफ शायर शातिर हकीमी मरहूम हयात फन के मौजू पर भी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार आपकी निगरानी में मुनक्किद किया गया। डॉक्टर साहब मुल्क के कई शहरों और उर्दू कॉन्फ्रेंसों, सेमिनारों और जलसों में बतौर मेहमान खुसूसी या मकालखों की हैसियत से मदऊ किए जाते हैं। इल्मी व अदबी और तालीमी हलकों में एक अदीब, मुहक्किक, माहिर तालीम और सहाफ़ी की हैसियत से भी वो एक मुसल्लिमा हैसियत के मालिक गर्दाने जाते हैं। बेहद जुद नवीज है। अब तक उनकी 16 किताबें मंजर आम पर आ चुकी है। डॉक्टर अजहर हयात सर की अवलीन किताब 1992 में अहमद शौकी एक मुताला के उन्वान से शाये हुई, जिसे महाराष्ट्र उर्दू अकादमी ने माली ताउन से नवाजा था। अरबी अदब के मौजू पर विदर्भ की ये अवलीन किताब है। ये किताब पंजाब यूनिवर्सिटी के MA के निसाब में भी शामिल रही। 1995 में दूसरी किताब बउनवान हाफिज विलायतुल्लाह हाफिज हयात व खिदमत महाराष्ट्र उर्दू अकादमी के माली इश्तराक से जेवर तबात से आरास्ता हुई। ये किताब तहकीक व तनकीद के बाब में अहमियत की हामिल है। हाफिज साहब वस्त हिंद के अवलीन तंज़ मज़ाह निगार थे। हयात सर को सऊदी अरब में क़याम के दौरान कई मरतबा उम्रे की सादत नसीब हुई। 1984 में आप फरीज़े हज से भी सरफराज हुए। सफर हज और उम्रे पर एक किताब लब्बैक के नाम से 2000 में शाये हुई। रवां दवां ज़बान बयान की वजह से लब्बैक को सफर हज के बाब में गिरा कदर इसाफा तस्लीम किया जाता है। MA उर्दू के तलबा के निसाब के पेश नज़र मौलवी नज़ीर अहमद तौबतुन नसूह एक मुताला उन्वान से एक मुख्तसर किताब 2011 में शाये हुई। विदर्भ में अरसे से जदीद लबो लहजे और असलूब में शोरा शेर कह रहे थे। उनका कलाम बिखरा हुआ था। हयात सर ने विदर्भ में जदीद उर्दू शायरी के उन्वान से एक किताब तरतीब दी। उसमें विदर्भ के नुमाइंदा शोरा का तारुफ और उनकी नुमाइंदा गजलें शामिल है। 2012 में ये जेवर तबात से आरास्ता हुई। इल्मी और अदबी हलकों में इसकी काफी पजीराई हुई। तुलबा की इफादियत के पेश नजर इसे नागपुर यूनिवर्सिटी में MA उर्दू निसाब में शामिल किया गया। इसी तरह शौर अदब हिस्सा अव्वल और दुवम BA और BSc के उर्दू निसाब में अरसे से शामिल रहे।
2011 में कौमी यकजहती और उर्दू शायरी और 2014 में गैर मुस्लिम उर्दू शोरा की शेरी खिदमत, इन दोनों उन्वानात के तहत आपकी इदारत में 2 अलहदा-अलहदा मुजल्ले शाये हुए, जिसे अदबी हलकों में पसंद की नज़र से देखा गया। इसी तरह वस्ते हिंद के मारूफ शायर हज़रत शातिर हकीमी मरहूम की शख्सियत और शेरी खिदमत के एतराफ़ में मुल्क के नामवर अदबा और शोरा के मज़ामीन का मजमुआ 2015 में किताबी शक्ल में शाये हुआ। सूफी गुलाम रहमान हकीमी के हमराह भी डॉक्टर साहब इस किताब के मुरत्तिब। डॉक्टर अजहर हयात सर सिर्फ अदीब ही नहीं बल्कि वो एक अच्छे मुतरज्जिम भी है। 2017 में आतिश फिशा के उन्वान से अंग्रेजी के मारूफ अदीब अनंत गोपाल शिवड़े के अंग्रेजी नॉवेल द वॉल्केनो का उर्दू तर्जुमा आसान और बामुहावरा जबान में किया, जिसे अल्फाज पब्लिकेशन कंपनी ने एहतमाम से शाये किया। इसी तरह राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर एस एन पठान साहब की मराठी किताब का उर्दू तर्जुमा अजहर हयात सर ने ये किताब हिंदुत्व का मतलब भारतीय यकजहती मुस्लिम मुनाफिरत नहीं उन्वान से 2019 में किताबी सूरत में शाये हुई। डॉक्टर अजहर हयात उर्दू नस्ल की मुख्तलिफ असनाफ में तबा आजमाई करते हैं। मौसूफ की पहली कहानी प्यार का भूखा महानामा नूर रामपुर यूपी बाबत मार्च 1974 में शाये हुई। तब से आप तवातुर के साथ लिख रहे हैं। वो एक अच्छे इंशा पर्दाज, इंशाइया निगार, तंज मजाह निगार और अफसाना निगार भी है। उनके कई अफसाने, मिनी अफसाने और कहानियां उर्दू जराइद और रसाइल में शाये होती रही हैं। अफसाने, इंशाइये, तंजिया व मज़ाहिया मज़ामीन और तालीमी, इल्मी व अदबी और शख्सियात पर मज़ामीन और किताबों पर तबसरे और दिबाचे और पेश लफ्ज़ किताबी सूरत में शाये करना हमारे मंसूबे में शामिल है। साल 2021 में डॉक्टर साहब ने नागपुर के कोहना मश्क शायर मरहूम मिर्जा जफर नागपुरी का दीवान तरतीब देकर शाये करवाया। इस किताब को कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान दहली ने माली इनायत से नवाजा। तहकीक और तनकीद के बाब में ये किताब इजाफे का दर्जा रखती है। इल्मी अदबी हलकों ने इसकी खातिर ख्वाह पजीराई की। डॉक्टर अजहर हयात सर एक सहाफ़ी की हैसियत से भी अपनी शिनाख्त रखते हैं। मौसूफ ने युग धर्म वीकली उर्दू एडिशन 1992 में मुदीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। नागपुर से शाये होने वाले अव्वलीन रोजनामा उर्दू समाचार में भी आपने खिदमत अंजाम दी। 1992 में मशहूर सहाफ़ी जनाब बशीर नुसरत की इदारत में शाये होने वाले हफ्त रोजा अखबार संग मील में ज्वाइंट एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 2020 में हफ्त रोजा ऑरेंज सिटी की इदारती जिम्मेदारी संभाली। इन अखबारों में कई मुस्तकिल कॉलम कारीन की तवज्जो मबजूल करवाने में कामयाब थे। 18 मार्च 2005 ता 21 अक्टूबर 2005 के दरमियान मराठी रोजनामा देशोन्नति में डॉक्टर साहब का तहरीर करदा किस्तवार कॉलम आओ उर्दू सीखे काफी मकबूल हुआ। उसी जमाने में एक कॉलम उर्दू शायरी चिया परिचय उन्वान से किस्तवार शाये हुआ। इस कॉलम में उर्दू शोरा की हयात और शायरी का अजमाइली जायजा कलमबंद किया गया। डॉक्टर साहब के उर्दू मज़ामीन का मराठी तर्जुमा मराठी अदीबा डॉक्टर किरण धवर साहिबा ने किया। ये कॉलम भी काराइन ने खूब पसंद किया। इस कॉलम से मराठी दान तबके को गालिब, मीर, मोमिन, जिगर के अलावा वस्त हिंद के मारूफ व गैर मारूफ शोरा की शायरी का इल्म हुआ। उस कॉलम का मराठी हलकों में यह असर हुआ कि उनके दिलों में उर्दू के तई नरम गोशा पैदा हुआ। इसी तरह डॉक्टर साहब उर्दू की तरवीज व तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। आपकी कई कहानियां मिनी अफसाने हिंदी जबान में शाये हुए हैं। 3 कहानियां पंजाबी जबान में भी तर्जुमा हुई और महानामा मिली के शुमारा नंबर 103 में 2014 को शाये हुई। डॉक्टर साहब अदबी, इल्मी और तालीमी सरगर्मियों में अब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप अंजुमन तरक्की उर्दू दहली शाख नागपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी तरह अदबी मजलिस नागपुर के सेक्रेटरी हैं। आप नागपुर की फाल सोसाइटी अंजुमन एक्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सरपरस्त और नागपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के ताहयात रुकन हैं। डॉक्टर अजहर हयात को उनकी अदबी, इल्मी, तालीमी और समाजी खिदमत के एतराफ में नागपुर और बैरून शहर में इनामात व एजाजात से नवाजा गया है। 5 दिसंबर 2013 को राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ने उन्हें मिसाली मुदर्रिस के अवार्ड से सरफराज किया। नागपुर यूनिवर्सिटी की तारीख में उर्दू के प्रोफेसर को हासिल यह अव्वलीन एजाज है। एक शानदार और पुरवकार तकरीब में पद्मश्री प्रोफेसर संजय धांडे के हाथों उन्हें ये अवार्ड तफवीज किया गया। 24 दिसंबर 2013 को हजरत शातिर हकीमी उर्दू एकेडमी
कामटी जिला नागपुर ने एक तकरीब में उन्हें मोहसिन उर्दू के खिताब से नवाजा। लोकतंत्र सोसाइटी ने भी मौलाना अबुल कलाम आजाद तालीमी खिदमत अवार्ड से नवाजा। नेस 2011 में मरहूम S.A. अंसारी मल्टीपर्पज सोसाइटी कामटी ने सर को अदबी अवार्ड देकर एजाज बख्शा। 2009 में महाराष्ट्र दलित तरुण संगठन नागपुर की जानिब से समाज रत्न का खिताब दिया गया। इसी तरह मराठी रोजनामा देश उन्नति की जानिब से हयात सर को फख्र शेर व अदब के एजाज से नवाजा गया। अलावाजी आपकी तर्जुमा शुदा किताबों आतिश फिशा अंग्रेजी तर्जुमा और हिंदुत्व का मतलब भारतीय यकजहती मुस्लिम मुनाफरत नहीं मराठी तर्जुमा को यूपी उर्दू एकेडमी और महाराष्ट्र राज्य उर्दू एकेडमी ने तर्जुमा निगारी का इनाम देकर हिम्मत अफजाई की। इसी तरह कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान ने दोनों किताबों को खरीद कर उसे सनद अता की। मशाहिर अदबा व शोरा ने भी हयात सर की खिदमत का एतराफ किया है। आपकी शख्सियत और खिदमत पर अदबा ने मज़ामीन कलमबंद किए हैं तो शोरा हजरात ने अपनी आप पर नज़में कही हैं। इससे उनके दिलों में सर के मुतालिक इज्जत व एहतराम और कद्र का अंदाजा होता है। हम यहाँ दो नज़में पेश करना चाहेंगे। दर्ज झैल नज़्म उर्दू के मारूफ शायर अब्दुल हफीज खलिश तस्कीनी साहब की जोर कलम का नतीजा है। ये एक तवील नज़्म है, इख्तिसार के साथ नकल करते हैं अजहर हयात सर के ताल्लुक से वो क्या तासुर रखते थे, नज़म से जाहिर होता है। मोहतरम खलिश तस्कीनी की पैदाइश 19 नवंबर 1935 को अमरावती में हुई और वफात 20 सितंबर 2020 को अचलपुर में। नतीजा फिक्र हजरत अब्दुल हफीज खलिश तस्कीनी अचलपुर। मुखलिस तरीन इंसान, मुखलिस तरीन इंसान अजहर हयात साहब, अहले कलम है जिनशा अजहर हयात साहब। अनमोल खिदमतें हैं उनकी मेरी नजर में, उर्दू के हैं निगहबान अजहर हयात साहब। मशहूर दोस्तों में हक गोई के लिए वो बेबाक सच्चे इंसान अजहर हयात साहब। रोशन करे वो शम्मे दुनिया में इल्म फन की, उस्ताज फख्र दौरा अजहर हयात साहब। तामीर उनका मौक़िफ़ खिदमत का शौक बेहद, तखरीब से गुरेज़ा अजहर हयात साहब। अल्लाह के करम से कर आए वो हज भी, किस्मत पे अपनी शादा अजहर हयात साहब। दिलदादा वो अदब के उर्दू पे जान छिड़के, हर हाल में गजल ख्वाह अजहर हयात साहब। एहसास फर्ज उनको, मेहनत का शौक उनको, मसरूफ कार हर आम अजहर हयात साहब। जौहर दिखा के अपने मैदान इल्म फन में, करते हैं सबको हैरान अजहर हयात साहब। दुश्वार काम को भी दुश्वार वो न समझे, फौरन तलाश इम्कान अजहर हयात साहब। जुल्फे ज़बां संवारे बेकार वो न बैठे, छाने अदब की गलियां अजहर हयात साहब। हिरस और हसद से कुछ भी मतलब नहीं है उनको, सबकी खुशी के ख्वाहा अजहर हयात साहब। गहराइयों से दिल की सबकी तरक्की चाहे, मिल्लत के गम में गरियां अजहर हयात साहब। सब लोग मानते हैं अच्छा सहाफी उनको, इस फन के मर्द मैदान अजहर हयात साहब। मिलजुल के हिंदू मुस्लिम खिदमत करे वतन की, रखते हैं दिल में अरमा अजहर हयात साहब। दुनिया है गुलिस्तान तो वो एक अच्छे माली, फन की खिलाए कलियां अजहर हयात साहब। एहसान याद रखे अल्लाह के खलिश हो, हर वक्त शाद खंदा अजहर हयात साहब। एक और नज्म उर्दू अदब अतफाल के मारूफ शायर व अदीब हैदर बयाबानी साहब ने हयात सर की खिदमत से मुतासिर होकर कही है। जनाब हैदर बयाबानी की पैदाइश 1 जुलाई 1948 और इंतकाल 19 जनवरी 2022 को अचलपुर में हुई। अदब शनास तौशीही नज़म अज हैदर बयाबानी। अलिफ, ऐसा अदब शनास के जिसका नहीं जवाब, बज़्मे अदब में उसका मिले क्या कहीं जवाब। जोए, जाहिर भी उसका एक है, बातिन भी उसका एक, सूरत भी उसकी नेक है, सीरत भी उसकी नेक है। हर वक्त मुस्तैद है वो उर्दू के वास्ते, तितली हो जैसे फूल की खुशबू के वास्ते। रे, रहता है फिक्र शेर व अदब में वो सुबह शाम, इस अंजुमन में उसका है अपना अलग मकाम है। हासिल है दस्तरत उसे हरफो बयान पर, करता है फख्र खूब वो अपनी जबान पर। ये यारों का यार, प्यार का पैगाम्बर वही, हर किस्से वफा से सदा बाखबर वही। अलिफ, उसने जलाए कितने दिए हर मकाम पर, रोशन हुए चिराग गई उसके नाम पर। ते, तहकीक और जुस्तजू में है हासिल उसे कमाल, वो बाकमाल ऐसा के जिसकी नहीं मिसाल। कुछ इस किताब के बारे में। एक नई बात निकल आई है, इस किताब में शामिल मज़ामीन तनकीदी, तहकीकी, तज्ज़ियाती और सवानही नौइयत के हैं।
डॉक्टर अजहर हयात साहब ने शौरी या गैर शौरी तौर पर हर शख्स का कोई ना कोई अछूता और मुनफरिद पहलू उजागर किया है, जिससे यकीनन एक नई बात निकल आई है। किताब में शामिल बेशतर शोराए कराम उर्दू शेर व सुखन में मोतबर और मारूफ है। चंद एक शख्सियत की हैसियत मकामी जरूर है, लेकिन अदब के वसी कैनवास पर उनका ताल्लुक भी खाली अज दिलचस्पी नहीं। मैंने सिर्फ शोरा हजरात पर ही मकालों का इंतखाब किया है, वरना अदीबों और दीगर मैदान में कारहाय नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों पर मजामीन की भी तादाद तकरीबन उतनी ही है, जिसे अलहदा किताबी शक्ल देना होगा। जिन शोरा पर मकाले लिखे गए हैं, उनकी खास बात यह है कि कहीं न कहीं वास्ता बिलवास्ता हयात सर से उनका ताल्लुक रहा है। फानी बदायूनी और हसरत मोहानी से उनका कोई राब्ता नहीं रहा। चूंकि वो मकाले मेहनत से लिखे गए हैं, इसीलिए उन्हें भी किताब में शामिल किया गया है। जिगर मुरादाबादी नागपुर आए थे और उनके वालिद बुजुर्गवार से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, जिसका जिक्र वालिद साहब ने हयात सर से किया था। उस वाक़ये को मौजू बनाकर जिगर पर ये दिलचस्प और अहम मज़मून हो गया है। कैफ़ी आज़मी पर मुफ़स्सल मज़मून यूँ निकल आया है कि कैफ़ी आज़मी को हयात सर ने न सिर्फ़ देखा, सुना, बल्कि उनसे मुलाकात का शर्फ़ भी हासिल हुआ। उनके इंतकाल पर नागपुर में हिंदी के एक मारूफ इदारे ने ताज़िया की नशिस्त का इनेकाद किया। उस मौके पर हयात सर ने ये मज़मून तहरीर किया था। अहमद फराज पर मज़मून इसलिए अहम है कि हयात सर ने उन्हें करीब से देखा और सुना था। मज़ीद ये कि उनकी निगरानी में एक तालिबा ने अहमद फराज पर आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। परवीन शाकिर पर मकाला लिखने की वजह दरियाफ्त की तो हयात सर ने बताया कि उनके एक मराठी सहाफ़ी दोस्त संजय मेश्राम परवीन शाकिर के इस कदर दीवाने हैं कि परवीन शाकिर की शायरी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के एक-एक पल का वो रिकॉर्ड रख रहे हैं। उनकी ईमा पर नागपुर में परवीन शाकिर का यौम विलादत मनाया गया। दोस्त की फरमाइश पर यह मज़मून सुपुर्द कलम किया गया था। हयात सर का अंदाज़ तहरीर ऐसा दिलचस्प और मौसिर है कि क़ारी मज़मून पढ़ना शुरू कर दे तो ख़त्म किए बिना दम नहीं लेता। इब्तिदा में किसी वाक़ये को इस मौसिर अंदाज़ में पेश करते हैं कि क़ारी पूरा मज़मून पढ़ने पर आमादा हो जाता है। वाक़ये से ममदूह की ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू पर रोशनी पड़ती है और एक नई बात निकल आती है। मेरे ख़्याल में ये वाक़यात बिल्कुल नए और मुनफ़रिद अंदाज़ के हैं, इसीलिए भी अहम है। मैंने मक़दूर भर कोशिश की है कि तरतीब व तदवीन का हक़ अदा करूँ। मुझे उम्मीद है कि अदबी हलकों में इस काम को खातिर-ख्वाह पज़ीराई होगी। इज़हार तशक्कुर। आखिर में इन तमाम खैर-ख्वाहों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझती हूँ, जिन्होंने इस किताब की तैयारी में मेरी मदद फरमाई और मुफ़ीद मशवरों से नवाज़ा। मोहतरमुल मक़ाम जनाब रेहान कौसर साहब का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने खुशदिली से इस किताब को डीटीपी से आरास्ता किया। मेरे शौहर एडवोकेट इमरान अहमद साहब ने इस किताब की तैयारी में हमेशा की तरह मेरी हर ज़रूरत को खुशी व रग़बत से पूरा किया। अल्लाह ताला उनको इसका अज्र अता फरमाए। मेरी वालिदा मोहतरमा की दुआएं और नेक ख्वाहिशात हमेशा मेरे साथ होती है, जिसकी वजह से मुझे हिम्मत व तक़वियत महसूस होती है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अम्मी जान को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस मौके पर मरहूम वालिद मोहतरम लतीफ़ अहमद साहब की याद आना फ़िक्री अमल है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। आखिर में उस्ताद गिरामी मोहम्मद डॉक्टर अजहर हयात साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और सेहतमंद व तवाना रखे। उन्होंने मुझे अपने मज़ामीन की तरतीब व तदवीन का मौका इनायत फरमाया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तालिब खैर डॉक्टर रेशमा तज़ई, सदर शोबाए उर्दू, एलएडी एंड श्रीमती आरपी कॉलेज फॉर विमेन, शंकर नगर, नागपुर। बहुत शुक्रिया।